کسی جماعت پر تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگتا، ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ نواز شریف کا گلگت میں جلسہ عام سے خطاب، سوال اٹھایا گلگت بلتستان کو آخر کیوں نظر انداز کیا گیا، وہ ترقیاتی منصوبے کیوں مکمل نہ ہو سکے جو ماضی میں شروع کیے گئے تھے۔ یہاں اکثر منصوبے شروع ہوتے ہیں لیکن مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے لیگی صدر نے کہا کہ انہیں کئی مرتبہ دیس نکالا دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ سے گلہ نہ کرو، قصور آپ کا بھی ہے، مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، مجھے کیوں ملک سے باہر جانا پڑا۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے معاشی مسائل حل کر سکتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات جی بی کو بھی دیے جائیں تو مسائل حل ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ جی بی میں حق حاکمیت کے بعد حق ملکیت حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد کو ماننا ہوگا جی بی کے وسائل یہاں کے عوام کے ہیں، ہمارے امیدوار کامیاب ہوں یا نہیں وزیر اعظم بی آئی ایس پی فنڈز میں اضافے کا اعلان کریں گے۔ دعا گو ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں، امن کوششیں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ دنیا بھر کے عوام جنگ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ بے دردی سے عالمی قانون توڑتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو شہید کیا گیا، اسکول پر میزائل مار کر بچوں کو شہید کیا گیا۔ اس الیکشن میں سوگ کا ماحول ہے، ان حالات میں یہاں انتخابی مہم چلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کا میلہ سجنے میں صرف 5 روز باقی، سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ پیپلز پارٹی رہنما آصفہ بھٹو بھی اسکردو پہنچ گئیں۔ بلاول بھٹو کی پارٹی کی مقامی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں شیڈیول۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر گلگت میں کارکنان اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا گلگت بلتستان سے پارٹی رہنماؤں کی صوبہ بدری کا دعویٰ، ایکس پر پیغام میں کہا ندیم حیدر پنجوٹھا، شوکت بسرا، حنیف گولڈن، ضیاء الدین قریشی کو گلگت بلتستان میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل، بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے کل وزیر اعظم کی زیر صدارت شیڈیول اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایوان صدر کے 5 جون کو اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہ ہو سکا۔ جب تک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اراکین کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 کے بجائے 10 جون کو بلانے پر مشاورت جاری۔ پاور سیکٹر کو سبسڈی، آئی ایم ایف نے نو مور کہہ دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاور سیکٹر کو سبسڈی میں 20% کمی کی تجویز۔ بجلی سبسڈی کا حجم جی ڈی پی کے 0.6% تک محدود رکھا گیا ہے۔ ڈیسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے ٹیرف سبسڈی 374 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ چینی آئی پی پیز کی واجبات ادائیگی کے لیے بھی فنڈز رکھنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کا غیر ہدفی سبسڈی ختم کر کے براہ راست نقد امداد کی طرف جانے پر زور۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت و پیداوار اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ملکی معیشت پر اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومت پالیسی ترجیحات کا حصہ ہیں۔ صنعت و تجارت اور معیشت کے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات طویل المدتی معاشی افادیت اور عوامی فلاح پر مرکوز ہونا چاہیے۔ کراچی میں صدر زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 2 گھنٹے طویل ملاقات، ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت، اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں داخلی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر بات چیت کی گئی۔ تم ایک پاگل اور ناشکرے ہو، میں نے تمہیں جیل جانے سے بچایا، کرپشن کیس سے تمہاری جان بچائی، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں اور تم باز ہی نہیں آ رہے۔ ٹرمپ نتن یاہو پر برس پڑے، فون کر کے کھری کھری سنا دی۔ ایکسیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کا موقف تھا کہ لبنان پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے امن کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، بیروت پر حملے نہ روکے گئے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے سخت لہجے پر نتن یاہو بھیگی بلی بن گئے، جی 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 کرتے رہے۔
नई जंग बंदी के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारतों और अस्पताल पर वहशियाना हमले, डॉक्टर और उसके 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के अरकान समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सेहोनी वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स की हमले बढ़ाने की धमकी, कहा जनूबी लबनान में ऑपरेशन हर कीमत पर जारी रहेगा। वाशिंगटन में लबनान इसराइल मुज़ाकरात का चौथा दौर, महकमा खारजा के हेडक्वार्टर्स में बातचीत जारी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ जारी जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दाखिली तक़सीम मुल्क के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बकर कालिबाफ ने अपने लेबनानी हम मनसब से राब्ते में कहा कि ईरान लेबनान पर हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया कि लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ये खोखली धमकी नहीं, ईरानी फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल आनी का इंतबाह, कहा कि मुज़ाहमती महवर बाबल मंदब की बहरी ट्रैफिक पर भी उसी नौयत की कार्रवाइयाँ कर सकता है जैसी आबनाए हुर्मस में देखी गई हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फौजी अहदाफ हासिल करने में इंतहाई कामयाब रहा। कार्रवाई से ईरान के दिफाई सनती ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। सेनेट की उमूर खारजा कमेटी में पेशी के दौरान अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अब अपने जौहरी प्रोग्राम के ऐसे मामलात पर भी बातचीत कर रहा है जिनका जिक्र करने से वो माजी में इनकार करता रहा था। ताहम इस बात की कोई जमानत नहीं कि मुज़ाकरात किसी काबिल कबूल मुआहदे पर होंगे। ट्रंप का ईरान से आइंदा हफ्ते मुआहदा होने की उम्मीद का इजहार, कहते हैं कि जंग बंदी में तौसीर और हुर्मस खोलने पर बातचीत जारी है। तात्तुल का मतलब फौजी कार्रवाई नहीं होगा। दावा किया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से बात करके लिबनान और हिजबुल्लाह से मुताल्लिक़ कशीदगी कम करने की कोशिश की है। फरीक़ैन के दरमियान राब्तों के जरिए सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश जारी है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी अपना हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। तर्जुमान ईरानी पासदारा ने इनकलाब गार्ड्स ने कहा है कि तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में आला तरीन सतह की अस्करी तैयारी, जंगी हिकमत अमली में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। ये तैयारी न सिर्फ साबका सलाहियतों पर मबनी है बल्कि मैदानी जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजुर्बात का भी नतीजा है। हिजबुल्लाह को लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल। वाशिंगटन में लिबनानी सफारत खाने के बयान के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी इसराइली इनखिला का पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में इसराइल जनूबी बैरूत के इलाकों पर हमलों से गुरेज करेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा उनकी जमात लिबनान के तमाम इलाकों में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करती है। जंगबंदी का निफाज खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने और कशीदगी कम करने में मददगार होगा। वज़ीर खारजा इसाक़ का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक़ ने कहा है कि सिफारतकारी और मुसलसल राबताकारी ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल का बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान ने लबनान पर इजरायली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही। कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत 11 बड़े नॉन एडीपी मंसूबे मंजूर। सुरजानी टाउन K4 चौरंगी पर फ्लाईओवर, पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची पर बड़े पुल की तामीर, मेरीन ड्राइव से मुंसलिक लिफ्टन की सड़कों की बेहतरी और कोरंगी क्रीक एयरबेस रोड और गुलजार हिजरी जिना एवेन्यू तौसीही मंसूबे की मंजूरी भी शामिल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही सूबाई काबीना के इजलास में फैसले। मुराद अली शाह ने कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के कदीम हिल पार्क से मुत्तसिल मुतनाज़ा प्लॉट पर तामीरात। मेयर कराची का वफाकी हुकूमत को खत अरसाल।
मेयर कराची ने वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से प्लॉट नंबर 39G4 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा है कि 1959 के असल मंजूर शुदा PECHS मास्टर प्लान में ये प्लॉट मौजूद नहीं था। इब्तदाई जांच में मुतनाज़ा मुकाम पर 500 गज का प्लॉट असल मंजूर शुदा लेआउट में जाहिर नहीं होता है। असल मास्टर प्लान के मुताबिक मज़कूरा मुकाम पर सिर्फ तकरीबन 200 गज बकाया अराजी बनती है। 500 गज का प्लॉट किस कानूनी बुनियाद पर जाहिर किया गया, मुताल्लिका हुकाम इसकी वजाहत फराहम करें। कराची के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। पाकिस्तान चौक का इलाका भी कई माह से पानी से महरूम, शहरी महंगे दामों टैंकर और RO प्लांट से पानी हासिल करने पर मजबूर। रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना भी अहले इलाका के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज दूसरा वनडे। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 232 रन का हदफ। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ग्रीन 53 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जोश इंग्लिस 51 और मैट रिंशा ने 43 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 3 और अरफात मिन्हास और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। फिटनेस मसाइल में घिरे टेस्ट क्रिकेटर फखर जमान की रिटायरमेंट से पहले कोचिंग में दिलचस्पी। फखर जमान समेत मुतादिद क्रिकेटर्स ने PCB का 6 रोज़ा लेवल 2 कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। आसिफ आफरीदी, उस्मान शिनवारी और हुसैन तलत भी कोचिंग कोर्स ज्वाइन करने वालों में शामिल। रूस के दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ यूक्रेनी शहरों पर शदीद हमले, 22 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हमले कैफ और डिनेप्रो समेत मुख्तलिफ शहरों पर किए गए। एक माह से भी कम अरसे में कैफ पर यह तीसरा बड़ा हमला था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रात भर होने वाले हमलों में रूस ने 73 मिसाइल और 600 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर। कराची समेत सिंध के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का राज, अवाम का बुरा हाल। आइंदा हफ्ते मुल्क के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में हवाओं के 2 सिलसिले दाखिल होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक गिलियात, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। KP, कश्मीर, खित्ता पोटोहार और मशरक़ी पंजाब में 5 ta 7 जून गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। और दिल फरेब आवाज के मालिक गुलकार मुजीब आलम को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। मुजीब आलम ने 62 फिल्मों में 90 के करीब गाने गाए, जिनमें 10 पंजाबी गीत भी शामिल हैं। चकोरी के एक गीत की मकबूलियत के बाद मुजीब आलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।